Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chapter number 14 Environmental Chemistry 1 Atmosphere Review Questions. Now question number 1 क्या है? Encircle the correct answer. Which gas has the highest percentage in air? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen या ozone? तो correct option is C, that is nitrogen. The gas which has the highest percentage in air is nitrogen, that is 78%. Lowest temperature in stratosphere is -5 degrees Celsius, -55 degrees Celsius, 5 degrees Celsius और 55 degrees Celsius. तो correct option क्या है हमारा? B है -55 degrees Celsius. Number 3 है जी, which is responsible for acid rain? SO2, NO2, both NO2 and SO2 और O3. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ NO2 एंड SO2. नंबर 4 है विच इज रेडिश ब्राउन गैस? NO, NO2, SO2 या O3. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा B, NO2. नंबर 5 है ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 80 किलोमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 12 किलोमीटर. स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 और 80 किलोमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, 50 किलोमीटर. द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर, द मेसोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर, द स्ट्रेटोस्फीयर. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज द स्ट्रेटोस्फीयर. 8 है मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ओजोन, एसिड रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. नंबर 9 है जी, विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? द स्ट्रेटोस्फीयर, द ट्रोपोस्फीयर, द मेसोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, द ट्रोपोस्फीयर. नंबर 10 है जी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फीयर इज द मेसोस्फीयर, द स्ट्रेटोस्फीयर, द ट्रोपोस्फीयर, द थर्मोस्फीयर. तो करेक्ट ऑप्शन है डी, द थर्मोस्फीयर. Now question number 2, give short answers. Number 1 is list 2 main sources of acid rain. Sulfur dioxide from power plants using fossil fuels, nitrogen oxides from exhaust fumes of automobiles. Sulfur dioxide और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो मेन सोर्सेज हैं एसिड रेन की क्रिएशन में. नंबर 2 है जी, लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन. Burning of fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas, combustion of leaded petrol in motor vehicle, use of CFCs as solvent for cleaning electronic circuit boards, as refrigerant in fridges and air conditioning units. और last है factories and power plants also release poisonous gases in air. What is the importance of stratospheric ozone? Ozone saves us from harmful effects of incoming UV radiation from sun. Ozone क्या करता है? जो हमारे सन से UV radiations आ रही होती है उनसे हमें महफूज रखता है. When ozone layer absorb energy from the sun, the energy is converted into heat, warming the air. और जब ओजोन जो है वो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हमारे पास क्या होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारी जो एयर है वो वार्म हो जाती है. Ozone protects living things on the earth from dangerous ultraviolet radiation from the sun. Ozone जो है वो living things को जो कि ज़मीन पे प्रेजेंट है उनको सेव रखता है from dangerous UV radiation from sun. Number 4 है what is the role of automobile in air pollution? Exhaust fumes of motor vehicle produces lead compounds which are poisonous solid particles and thus causes air pollution. It causes effects such as brain damage और forest decline. जो मोटर व्हीकल के जो एग्जॉस्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लेड कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही पॉइजनस सॉलिड पार्टिकल है और वो फिर बाद में एयर पोल्यूशन को काज करता है. उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ब्रेन डैमेज होता है और दरख्तों को नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिक्लिनेशन होती है. Exhaust fumes of motor vehicle produces oxides of nitrogen, NO and NO2, which are highly toxic gases and thus causes air pollution. It causes effects such as coughs, headache, lung diseases. और दूसरा क्या होता है कि एग्जॉस्ट फ्यूम जो होते हैं मोटर व्हीकल के वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि
अगेन हाईली टॉक्सिक गैसेस हैं और वो एयर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। जो उनके इफेक्ट्स होते हैं वो क्या है, कफ है, हेडेक है और लंग डिजीजेस हैं। Incomplete burning of automobile produces carbon monoxide, which is poisonous gas. It causes effects such as headache, brain damage and death. जो ऑटोमोबाइल का फ्यूल है उसकी जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो अगेन पॉइजनस गैस है और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या है, हेडेक है, ब्रेन डैमेज है और डेथ है। नंबर 5 क्या है जी, डिफाइन एटमोसफियर। द इन्वेलप ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। गैसेज ये वाटर के जो सराउंडिंग है, जो कि अर्थ को घेरे हुए, वो क्या है, एटमोसफियर है। The gases includes nitrogen 71%, oxygen 21%, argon 0.93%, CO2 0.038%, neon 0.0018%, helium 0.00052%, methane 0.00015%, krypton 0.00011%, hydrogen 0.00005%. Question number 3, explain temperature variation in stratosphere and troposphere. As we move from Earth's surface to upward atmosphere, the temperature varies from surface to 12 km. In troposphere, as altitude increases, the temperature decreases from 17 degrees Celsius to about minus 55 degrees Celsius. On average, every 1 kilometer increase in altitude, the air gets about 6.5 degrees Celsius cooler. From 12 km to 50 km in the stratosphere, temperature increases from minus 55 degrees Celsius to minus 5 degree Celsius. जैसा जैसा हम अर्थ एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 12 किलोमीटर तक क्या करता है, वेरीज करता है। और उसमें जो वेरिएशन आती है वो क्या आती है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ट्रोपोस्फेयर में तो टेम्परेचर क्या होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर माइनस 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और जब हम मज़ीद ऊपर मूव करते हैं 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, अगेन इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और वो माइनस 55 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के माइनस 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लिस्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2 and O, ozone O3, combination of O3 and O. Now components of troposphere: nitrogen, oxygen, argon, water vapors and carbon dioxide. Question number 5 है, describe sources of air pollutants. सबसे पहला जो सोर्स है एयर पोल्यूटेंट SO2 वो है पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज। SO2 के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रही हैं। अगला जो एयर पोल्यूटेंट है वो CO है और उसका जो सोर्स है वो क्या है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड फ्यूल्स एंड व्हीकल एग्जॉस्ट। जो व्हीकल के अंदर जो फ्यूल यूज होता है उसकी जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, जब हम वुड को जलाते हैं उसकी जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, व्हीकल एग्जॉस्ट से जो हमारे पास गैसेस निकलती हैं उससे जो है वो CO बनता है। NO2 exhaust fumes of motor vehicle, power station and industries using fossil fuels. मोटर व्हीकल्स, पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज जो है वो सोर्सेज हैं फॉर द एयर पोल्यूटेंट NO2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन को हमने डिस्क्राइब करना है और उसके इफेक्ट्स बताने हैं। सबसे पहले हम एसिड रेन की डेफिनेशन को देखते हैं। A rain having pH less than 5.6 is called acid rain. ऐसी रेन जिसकी pH जो है वो 5.6 से कम है वो क्या है, एसिड रेन। और जो नॉर्मल रेन जो होती है वो उसकी pH जो होती है वो 5.6 होती है। सोर्सेस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इफेक्ट्स। Sulfuric acid eats away a metal to form soluble salts and hydrogen. Marble buildings and statues are destroyed by acid rain. Acid rain also kills fish and destroys trees. Lake and river water become too acidic for living organisms to keep alive.
सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो हमारे मेटेलिक बॉडीज होती हैं उनमें से मेटल को वो निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके जो है वो सोलुबल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन बना देता है। मार्बल बिल्डिंग्स और स्ट्रेचेस को वो डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो मार्बल यूज हुआ होता है और एसिड जब मार्बल से रिएक्ट करता है तो हमारे पास मार्बल जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और एसिड रेन का जो वो पानी है जब वो दरियाओं या नदी में जाता है, वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है और जो दरख्त होते हैं वो भी एसिड रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। और जो लेक और रिवर का वाटर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जहरीला बन जाता है और वो उसके अंदर जिंदा नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। Ozone is an allotropic form of oxygen comprising 3 oxygen atom. O3 ozone is an important gas in stratosphere. Ozone क्या है? Allotropic form है ऑक्सीजन की, 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ओजोन में, O3 हम लिखते हैं ओजोन को। और ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर लेयर जिसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पर प्रेजेंट है। On absorbing UV radiation, ozone molecule break up to form a oxygen molecule and atomic oxygen. जो सन से यूवी रेडिएशन आ रही होती हैं जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं या ओजोन के ऊपर जब यूवी रेडिएशन आके स्ट्राइक करती हैं तो वो ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Atomic oxygen is very reactive. It reacts with an O2 molecule to form ozone and thereby releasing heat. और जो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो अगेन O2 के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास ओजोन दोबारा से फॉर्म हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं, हीट रिलीज होती है। Both destruction and reformation of ozone are powered by UV radiation. In the absence of outside intervention, the rates of ozone destruction and formation remains equal. जो ओजोन की डिस्ट्रक्शन है या फॉर्मेशन है वो यूवी रेडिएशंस के ज़रिए से अकर होती हैं। अगर उनके दरमियान कोई बाहर से कोई ताकत एक्ट नहीं कर रही या कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रही एक्सटर्नल सोर्स से, तो जो ओजोन की डिस्ट्रक्शन रेट है और फॉर्मेशन रेट है वो क्या है रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फिनोमेना ओजोन जो है वो डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से जो उसका फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन रेट है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। Human activity releases many compounds in the atmosphere which threaten the stability of ozone. Human activities जो हम करते हैं, बर्निंग करते हैं या हीटिंग पर्पस के लिए जो हम गैसेस यूज करते हैं, उनसे जो है ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं जिनसे ओजोन को खतरा लाक होता है। The region in which the amount of ozone has been reduced is called as ozone hole or ozone depletion. ऐसा रीजन जहाँ से ओजोन खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं ओजोन होल या ओजोन डेप्लीशन। Effects of ozone depletion. Ozone depletion causes the increase in UV radiation levels on Earth's surface which is damaging to human health. Ozone depletion जैसे हो रही है उसका जो असर होता है वो क्या होता है कि जो हमारे सन से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं जिसकी वजह से जो है वो ह्यूमन हेल्थ के अंदर बहुत से डिजीजेस कॉजेस करती हैं। Negative effects include increase in certain types of skin cancers, eye irritation and immune deficiency disorders. Ozone depletion also causes sunburns और ozone depletion से जो है वो sunburn भी अक्सर होता है। Ozone depletion causes global warming and thus temperature of Earth's surface increases causing melting up of ice caps. This raises water level of ocean and seas and this causes flooding in coastal areas. Ozone depletion से क्या होता है कि जब हमारे पास रेडिएशन अर्थ में आती हैं और वो वापस नहीं जाती और वो अर्थ सरफेस में ही ट्रैप हो जाती हैं तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं
ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ रहा है और हमारे जो कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लडिंग भी अक्सर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। The warming of atmosphere which is due to our influence on greenhouse effect is known as global warming. एटमॉस्फेयर का वार्म होना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, इफेक्ट करे, वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स क्या है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल ग्रेजुअली इंक्रीज। जब गैसेस वापस नहीं जाएंगी और वो अर्थ सरफेस में ट्रैप हो जाएंगी तो ग्रेजुअली क्या होगा, जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आइस ग्लेशियर में मेल्ट एंड कॉज इंक्रीज इन सी वाटर लेवल। आइस ग्लेशियर जो होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सी वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अब जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या है, देयर विल बी risk of flooding due to heavy rains in some regions and drought in other regions because of no rainfall. तो कई इलाकों पर सैलाब आना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू हैवी रेनफॉल, या जो सी वाटर लेवल उनका इंक्रीज करेगा तो हमारे पास सैलाब आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी और वहाँ पे कहर पड़ना शुरू हो जाएगा। सोर्सेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग की, मीथेन गैस है, सीएफसीज है, CO2। सीएफसीज कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के जो नंबर ऑफ लेयर्स, मतलब कि वो किस सीक्वेंस से प्रेजेंट है ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले जो लेयर है नीचे वाली उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। फिर आती है उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर में क्या है जी, लिविंग थिंग्स लिव इन दिस लेयर। जो जितनी भी जानदार चीजें हैं वो ट्रोपोस्फीयर में लिव करती हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, पीपल ओनली स्पेंड टाइम इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज व्हेन दे आर ट्रैवलिंग थ्रू इट ऑन एन एयरप्लेन। और जब हम एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम थोड़े से टाइम के लिए स्ट्रेटोस्फीयर जोन में जाते हैं। द एयर डेंसिटी एंड एयर प्रेशर आर हायर इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में एयर प्रेशर और एयर डेंसिटी हाई होते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर में एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर लो होते हैं। देयर इज वेरिंग ह्यूमिडिटी और स्ट्रेटोस्फीयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती या लो होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है जी, एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन। Stratospheric ozone is formed naturally through the interaction of solar UV radiation with molecular oxygen. The ozone layer, approximately 6 through 30 miles above the Earth's surface, reduces the amount of harmful UV radiation reaching the Earth's surface. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो कैसे बनते हैं कि जो यूवी रेडिएशन होती हैं सन की वो रिएक्ट करती हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और फिर वो बना देती हैं ओजोन। द ओजोन लेयर, जो ओजोन की जो लेयर है वो 6 से 30 माइल्स अबव अर्थ सरफेस प्रेजेंट है। ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं उससे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि वो अर्थ सरफेस को रीच ना करें, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए गुड नहीं है। और जैसे ही वो हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर सर्टेन डिसऑर्डर्स या डिसीजेस पैदा होते हैं। Tropospheric or ground level ozone, what we breathe, is formed primarily from photochemical reaction between two major classes of air pollutant, volatile organic compound, and nitrogen oxide. These reactions have traditionally been viewed as depending upon the presence of heat and sunlight, resulting in higher ambient ozone concentration in summer months. जो हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कैसे फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है from the photochemical reaction of VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आएगा। जब वो VOC के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओजोन बनेगा। Although some stratospheric ozone is transported into the troposphere and some VOC and NOx occur naturally, the majority of ground level ozone is the result of reactions of man-made VOC and NOx. जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो
सम टाइम क्या होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो VOC और NOx की जो प्रेजेंस है नेचुरली, उससे भी हमारे पास ओजोन बनती है। जो हमारे पास ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो किससे बनती है, जो हमारी मैन मेड जो VOC और NOx है जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ओजोन बनता है। द रिएक्शन इज शोन एज O2 plus O will get converted into O3 plus heat. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, ओजोन बनेगा, और हमारे पास एज अ हीट रिमूव होगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज ड्यू टू आवर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेयर का वार्म होना ड्यू टू आवर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। Greenhouse effect. The greenhouse effect is a process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun's heat. This process makes Earth much warmer than it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the things that makes Earth a comfortable place to live. Greenhouse effect क्या है? ऐसा प्रोसेस है जो कि अर्थ की जो गैसेस हैं वो ट्रैप कर लेती हैं जो हमारी सन की हीट है। इससे क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है एज कंपेयर अगर एटमॉस्फेयर ना होती। द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो कंफर्टेबल है जिंदगी गुजारने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Global warming is the process that warms the Earth's surface. The process is called the greenhouse effect because the exchange of incoming and outgoing radiation that warms the planet work in a similar way to greenhouse. अब ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि जो ग्रीन हाउस का प्रोसेस है वो क्या होता है, ऐसे ही होता है कि वो हमारी जो इनकमिंग रेडिएशंस होती हैं वो वापस नहीं जाती और वो अर्थ में ही ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है और ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना अकर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट CFCs कंट्रीब्यूट टू द ओजोन डिप्लीशन। व्हाई? CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, एरोसोल कैन के अंदर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर निकलते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो ओजोन प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और एक CFC मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओजोन डिप्लीशन अकर होती है। CFCs are gases or low boiling liquid. They are so inert that they do not react with any other chemical in troposphere. CFCs क्या हैं जी, गैसेस हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड हैं। ये इतने इनर्ट होते हैं कि वो किसी और केमिकल के साथ जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है रिएक्ट नहीं करते। दे स्लोली डिफ्यूज इनटू द ओजोन लेयर और वो ओजोन लेयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। यूवी रेडिएशन ब्रेक CFCs मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। और जब यूवी रेडिएशन CFCs पे स्ट्राइक करती हैं तो वो उनको क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। ये रिएक्शन है, ये हमारे पास है CF3 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl3F। ये जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, CCl2F और क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म chlorine monoxide ClO and molecular oxygen. ClO react with atomic oxygen produced by decomposition of ozone by UV radiation. अब ये वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन मोनोक्साइड और एक
बनेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और जो हमारा रिएक्शन आएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल का ओजोन के साथ, वो क्या आएगा ClO प्लस O2, ये हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। किससे आएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस ओजोन। और जो हमारे पास नेट रिएक्शन है ओजोन का और एटॉमिक ऑक्सीजन का, वो क्या होगा? O3 plus oxygen will get converted into 2O2. The chlorine free radical that reacts in step 1 is regenerated in step 2. स्टेप 2 में देखें आप, जो हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल यूज किया था वो हमारे पास दोबारा से स्टेप 2 के अंदर फॉर्म हो गया है। One chlorine free radical can therefore destroy thousands of ozone molecule, और एक क्लोरीन का जो रेडिकल है वो thousands of ozone molecule को डिस्ट्रॉय कर देता है, and thus CFCs contribute to the ozone depletion. Now question number 13 है जी, sulfur dioxide is a common pollutant from burning coal. State the effect caused by this pollutant. Effects caused by sulfur dioxide: breathing difficulties, bronchitis, emphysema, lung cancer, acid rain and greenhouse effect. जो सल्फर डाइऑक्साइड है उनसे जो होता है हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ सकती हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फिजिमा हो सकता है, और अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारी लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाए तो हमारे पास लंग कैंसर अकर हो सकता है। और अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारे रेन वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास एसिड रेन अकर होगी, जिससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर हो सकता है। Now that's all about review questions of chapter number 14. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any query related to this video, please put a comment in the comment section box and give your suggestion for the betterment of my video. Inshallah, in our next video, we will discuss chemistry class 10, chapter number 14, environmental chemistry, atmosphere, think tank questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.